रचना जी भी आ गई। Bienvenidos a todos ustedes, me encanta, hoy muchos alumnos, so welcome you all। आज हमारी क्लास भरी भरी पूरी लग रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे साथ नेटिव स्पीकर भी हैं और आज हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से कि फ़ोन इस तरह करिएगा सभी लोग, तो पूरा स्क्रीन सबको दिखेगा, है ना। फ़ोन सभी लोग स्क्रीन रोटेट पे लगा के इस तरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस Sir, I'm the audience. नो I'm प्रॉब्लम, the audience. नो प्रॉब्लम। Okay. Okay. लिसनर ही तो आगे चल के सबसे अच्छा बोलता है। बिल्कुल, आप बहुत कुछ सीखेंगे आज, और खासकर आप सभी लोगों को मैं प्रेजेंट करूंगा शौर्य को। शौर्य हमें बहुत इंस्पायर करेंगे आज। सबसे कम उम्र के स्टूडेंट हैं और इन्होंने कहा कि सर वहाँ पे तो बड़े बड़े बच्चे होंगे। तो हमने कहा बेटा तुम बड़े बड़े बच्चे को भी फेल कर दोगे, आज सब बड़े बड़े बच्चे तुम आपसे सीखेंगे। तो आज बिल्कुल उनकी भी परफॉर्मेंस को हम लोग सभी लोग एक दूसरे की परफॉर्मेंस को सराहेंगे। अब बिल्कुल हम लोग क्लैपिंग भी करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि हमारी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन हो रही है। ओके, जैसे हम लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्लास में एक कहूंगा कि जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होगी सभी लोग अपना माइक ऑन करके क्लैप जरूर करेंगे, एक दूसरे का मोटिवेशन हमें हौसला अफजाई जरूर करनी होगी। सो सबसे पहले मैं दुल्से को इनवाइट करूंगा और पहले वो अपने बारे में कुछ हम लोगों को स्पेनिश में बताएंगी। हम लोग उसको सुनेंगे, वो इंग्लिश में भी बताएंगे और स्पेनिश में भी बताएंगे। So, Dulce, bienvenida. Yo quiero que puede presentar a ti delante de mis alumnos en inglés y español también. Luego podemos empezar cada uno y pueden presentar su guión delante de ti. Por favor, Dulce. Hello. Hi, everybody. My name is Dulce Edith Rojas Rojas. I'm from the Mexico City, but now living in Cancun, Mexico. Okay. Me is married with the mom English, the United Kingdom, the Salisbury, for 10 years before. Me have 2 children. The name is Angie Wang, the woman. Omar is my boy. And we have 50 years old, but maybe not look 50 years old, maybe more. You look more younger. Thank you. Maybe for me it's happy. Bueno, ahora mismo en I'm español. trying to get the mark. Ok, sure. Ahora mismo en español, por favor. Ok. Mi nombre es Dulce Edith Rojas Rojas. Y por favor, un poco despacio, lento, ¿ok? Porque ellos pueden entender. Ok. Sí. Ok. Mi nombre es Dulce Edith Rojas Rojas. Aquí tenemos 2 apellidos o last name, ¿ok? Yo vivo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Es un lugar de playa y turístico. Yo nací en la Ciudad de México. Tengo 50 años yo. Estoy casada con un hombre inglés de Inglaterra, de su origen es Salisbury. Yo tengo 50 años y tengo 2 niños, una niña llamada Angie y un niño llamado Omar. Muy bien, मुझे ये तो मालूम है कि और कुछ ना समझ में आया, लेकिन ये 50 años समझ में आया होगा, हिjo समझ में आया होगा, कहाँ रहती है मैक्सिको में वो भी समझ में आया होगा। और मैक्सिको, ये जो कांकून एक जगह बता रही हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, कभी गूगल पे सर्च करिएगा। बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं और मैंने बहुत फोटोज देखी हैं, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं जो वहाँ रहते हैं। तो muy bien, muchas gracias. Ahora y tú vas a empezar clase y puede preguntar a cada alumno, ellos pueden presentar y puede empezar cualquier persona. Sí, claro, hoy es tu clase, hoy yo no soy profesor, hoy tú eres profesor. Okay. Sorry to not say properly the names is difficult for me, for it's different. Bueno, no hay problema. Different names, Sí. different countries. Okay. The first question is for in Spanish or in English. Tell me. Ellos primero podemos escuchar, podemos invitar a ellos que, ven y puede presentar. Tenemos que escuchar sus presentaciones y luego podemos preguntar
sobre ellos. Primero escucharemos Ok. todo, completo, como unos minutos. Ok, la pregunta es para el niño Sherha. शौर्य ओके शौर्य Ajá. शौर्य लैपटॉप थोड़ा नीचे करोगे आपका फेस नहीं दिख रहा उनको हाँ ओके Cuéntame de ti. cuéntame de ti tell me something about you अपने बारे में बताओ Mi nombre es Shorya, mi apellido es Maheshwari. Yo tengo 12 años. Yo nací en Aliche. Yo vivo en Aliche. Yo soy de indio. Yo soy de India. Yo soy indio. En mi familia hay 4 miembros. Mi padre, mi hermano menor. Gracias. muy bien सभी लोग माइक ऑन करें भाई इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज muy bien felicidades Wow, muy bien ella puede vivir en un lugar que hable español. sí exacto वो बोल रही है आप उस जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे लोग स्पेनिश बोलते हैं बहुत अच्छा था muy bien hay errores puede contar sí No encuentro errores. Creo que solamente le falta, como quien dice, más fluido, pero va perfecto. muy Está bien muy bien. muy bien so sure there was no mistake आपका बिल्कुल सब कुछ सही था बस हम इसको थोड़ा और लंबा कर सकते थे बिकॉज अभी भी आपने कुछ चीजें नहीं बोली जैसे आपने अपनी फेवरेट चीजों के बारे में नहीं बताया फेवरेट कलर के बारे में ये सब चीजों के बारे में नहीं बताया but she is going to ask you okay Dulce, ahora puede preguntar algunas preguntas como sobre su familia, mamá, papá, su favorito color, comida, así, sus pasatiempos, así. Okay. En español. Me gustaría preguntarle, En me español. gustaría preguntarle a la, me gustaría preguntarle a la chica de lentes. No, primero, solamente perdón, Dulce, tiene que preguntar con Shorre algunas preguntas ok. sobre su Shorre, presentación, el sí, niño. exacto. Ok. Me gustaría saber si te gusta la escuela. Shorre, ¿te gusta la escuela? Mi escuela nombre es KBES. उन्होंने बोला श्योर अभी मैं आपको समझाता हूँ देखो कोई किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती वी आर हियर टू टीच ओके शी आस्क्ड ते गुस्ता याद है आपको मैंने गुस्तार की बार बताई थी ते गुस्ता मतलब डू यू लाइक You like your school? हाँ तो वो पूछे Sí, me gusta mi escuela. हाँ Sí, me gusta. ओके ¿Te gustan los juegos, los videojuegos? video juegos es game do you like video games Sí, me gusta videojuegos. juegos sí Dulce tiene que preguntar ahora sobre su familia aquí cuántos miembros de familia hay como favorito color así ¿Cuántas personas viven en tu casa? de nuevo ¿Cuántas? Can you repeat the question? Sí, ok. ¿Cuántas personas viven en tu casa? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas es how many persons? ¿Cuántas es how many? Personas es person. Vives, live in your house. Viven in your house. Hay 8 miembros en mi familia. Cuenta, tell me. ¿Quiénes son? ¿Quién es son? वो कौन है? Who are they? Mi madre, mi padre, mi hermano menor, Professor, what do you say grandmother and father? Abuelo, abuela. Abuelo, abuela, en mi familia. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? No, esa pregunta no, él lo puede, tiene que preguntar así mismo orden, como así.
¿Qué color te gusta? O favorito, palabra usar favorito. Tus Ok. favoritos lugares, sí. ¿Cuál es tu favorito color? Mi color favorita es el verde. ¿Tu deporte favorito? Deporte, sports. Mi deporte favorito es al cricket. Ok. Muy bien. ¿Sabes jugar? ¿Sabes? Eso pregunta él no va a saber, porque ahora Ok, esos como perfecto, solo vamos por aprenden partes. algunos vocabularies, pero muy bien, Ok. शौर्य, आपने बहुत अच्छा सबसे पहले मेरी नज़र में ये बाकी सबको मालूम है कि आपसे कि जो पूछ रहे हैं बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है और आपने उसका बड़े ही धैर्य के साथ और पेशेंस के साथ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दिया, तो felicidades, congratulations. Ok, bueno, ahora sí, puede preguntar con segunda alumna o alumno. La chica de lentes no dice su nombre. Sí. What is your name? The woman glass. Women class, Mir Chandani. आपका नाम उनके लिए डिफिकल्ट पड़ रहा है। अरे माइक नहीं ऑन हो रहा है, रुको रुको, एक नहीं मेरे से भी नहीं होगा। हो, अगर नहीं हो रहा मैम तो एक बार आप आउट होके फिर से इन कर लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। यू कैन आउट एंड देन यू कैन ज्वाइन अगेन। आप मीटिंग से आउट हो जाइए और फिर से ज्वाइन कर लीजिए लिंक पे क्लिक करके। ओके ओके, mientras puede preguntar con otro. Ok. Gazala. No, se llama Vishal, ¿sí? No, Gazala no. Okay. Oye, perdón, perdón, Gazala. Imran, se llama Imran. Ok, bueno. Ok, Imran. Sí, sí. Imran, hola. Hola, Háblame de ti. ¿Cómo es tu familia? mi familia, seven miembros. Sí es, Mi- siete, mi- siete miembros. 7 miembros. ओके, शुरू से शुरू करिए अपनी प्रेजेंटेशन शुरू से। ओके, Yes. Okay. Yo soy, yo soy Imran. Yo soy, uh, yo vivo en Lucknow. Mi lengua materna es hindi. Yo hablo inglés. Además, yo soy aprendiendo español. Yo we cannot see you, we cannot see you. कैमरा के सामने वो हाथ आ रहा है। अच्छा, हम्म अब आ रहा है? yes, we can see you. Soy principiante es esto. Yo tengo postgrado. Yo tengo 10 10 años en estudiando. Mi familia, mis six miembros en mi familia, me gusta música. Eso es todo sobre ti. Muy bien, felicidades, felicidades, very good. Ok, so Dulce, sí, por favor, cuenta sus errores. Sus errores. Pues mira, yo lo entendí todo, pero podría ser un error. One error for you maybe is you need thinking in Spanish and try for no translation so much. Only thinking in Spanish. For me, my language no is English, but what try for speak English with my husband or with my dad and my husband. I needed no translation, and just now I needed thinking in English and say, okay, now it's with the people English, I need to speak in English. Okay, sometimes we forgot things, but it's possible you
no try for translation and okay, now it's Spanish. Voy a pensar en español. Coming fast. Okay, sí. So you need only fluid. Yo tengo. And one advice for everybody is when I the R or R in Mexico is difficult. I understand. For me, it's difficult too. But well, me before the now finish touch the pencil. And push your tongue exactly and they play the R. R, cigarro, okay? And this is push the language for R. It's difficult, the R in Mexico. Perro, correr, Okay. barrer, brush, okay? And this is for you, one is difficult R, is put your tongue, R. Show what the children's in Mexico for children's and when it's young it's difficult. And so put your tongue exactly and they play the pencil and show you. For it's difficult, I understand. So you got very good. Only try for more fluid and no worry. Okay, relax. I understand it's difficult sometimes. They come and see your teacher very strict, but it's fine. Okay. Muy bien, You do it good. muy bien. And you think only you need little more fluid. ओके ये बहुत दयालु थी लेकिन मैं दयालु नहीं हूँ तो मैं तो मैं जो एरर है वो बताऊंगा। पहली चीज तो वही एरर सेम हुई है जो व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप में लिखी थी। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि जो हम लोग स्पेनिश पूरा का पूरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश से और हिंदी से, तो स्पेनिश के माध्यम से सीखें आगे चल के और हम उसको कोशिश करें कि स्पेनिश में सोचना शुरू करें। अब यहाँ पे इनकी भी बात आपकी भी बात सभी लोगों की जायज़ होगी कि अभी तो स्पेनिश शुरू किया, अभी कैसे स्पेनिश में सोच लें, ठीक है, लेकिन हम लोग आगे चल के ऐसी चीज़ें को करेंगे। यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है सभी लोग मैंने सबकी ऑडियोज भी सुनी थी लेकिन मैंने कहा जब क्लास होगी तो मैं बताऊंगा कि अभी हम सभी लोगों को फोकस करना है हमारी प्रेजेंटेशन पे, हमारी फोनेटिक्स पे। तो अभी भी हमारा ए का प्रोनाउंसिएशन जैसे आ हम लोग बोलते हैं, जैसे आन्यो को हम लोग बोलते हैं एन्यो, है ना, तो आन्यो होता है। उसी तरह से जब हम ई बोलते हैं तो उसको हम लोग मतलब ए होता है साउंड स्पेनिश में, तो हम लोग उसको अभी भी ई ही बोल रहे हैं। कई लोगों की उसमें प्रेजेंटेशन में था ऐसा। तो हमको क्या करना है, जो YouTube का मैंने आपको बताया था लिसनिंग वाला मेरी वीडियो जिसमें थी 11 वीडियो की सीरीज है, करीब 12 वीडियो की, मैं फिर से उसको लिंक को शेयर कर दूंगा। जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार अच्छा होगा। अगर आप लोगों ने आज के बाद से आप एक चीज कंपलसरी में कर दूंगा कि 30 मिनट रीडिंग करनी है पर डे, ठीक है। सो अगर आप सभी ने 30 मिनट रीडिंग नहीं की तो क्या होता है ना कि फिर हम लोग सही से इंप्रूव इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। बाकी हम पहले महीने में 1 मिनट भी अगर स्पेनिश फ्लुएंटली बोल लें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप सभी लोग 1 मिनट भी स्पेनिश अगर बोल लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हम किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जी रचना जी कुछ कह रही हैं आप? आपका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही रचना जी। अभी नहीं फिर नहीं आ रही, गया। नो वी कैन नॉट। आप फिर से आउट होके फिर से शायद ज्वाइन करेंगे तो आ जाए। नो अभी आई यस मैम। नो फिर से गया ओके सो अभी आपका माइक मैम चल गया, आप माइक ऑन करके देखिए। ओके प्लीज इमरान जी माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए मीरचंदानी या प्लीज या रचना जी बोलिए प्लीज। Just wanted to know that from where you can go for the reading, from where you can get for the reading. वो एक्चुअली मैंने YouTube पे जो बिगिनर्स के लिए है, मैंने उस पे एक
वीडियो की सीरीज बना रखी है जो बिगिनर्स के लिए हैं, तो उसमें 11 वीडियोस है करीब। और मैं किसी का माइक ऑन है क्या? किसी का माइक ऑन है? मीर चंदानी जी माइक बंद कर लीजिए, तो फिर वो थोड़ा आवाज इको कर रहा है। हाँ हाँ जी। तो मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। अभी माइक बंद मैं माइक बंद कर लीजिए, थोड़ा आवाज इको कर रहा है। सर मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम है सर, वो होता ही नहीं है बंद, वो बंद हो जाता है तो चालू नहीं होता, चालू। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा मैं रचना जी, मैं आपको बता दूं, मैं इनकी प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आज आप दूसरे को बता देना कि मैं लिसनर हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा मक्कार कुछ अगर सब ने तो कर लूंगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो बताना कि देखने देखते हो मुझे देखते। मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए मीर चंदानी जी प्लीज। Hola, ¿cómo estás, amigo? Mi nombre es Rushali Nichandani. Rushali. Mi nombre, yo vivo en Kenia. Yo, yo soy Rushali, yo soy indio. Yo vivo en Kenia, Nairobi. Somos, yo tengo 44 años. Tengo 11 años de experiencia de manejar negocios. Somos cuatro miembros en la familia. Mi marido es un empresario. Yo tengo 2 niños, una chica y un chico. Me gusta cocinar. Yo amo leer libros. Yo estoy estudiando español. Por favor, ayuda a aprender español. Sí. Ya. SOS sobre mí. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, felicidades, आपने बहुत अच्छा बोला। और मुझे अच्छा लगा कि आपका देखिए, जो प्रेजेंटेशन के टाइम पे हमारा आर्टिकल होता है, ये बड़ा ध्यान रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने जैसे un hijo, una hija, I love it. Okay, Dulce जी, por favor, ¿cuáles algunos errores o todo es perfecto? Rushali, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál? Gracias. No, वो पूछ रही है आपको, ¿cuál es tu color favorito? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? Me gusta blanco, negro. Muy bien, Color. muy bien. Me gusta color Ujú, negro, blanco, rojo. muy bien. ¿Qué más? Roshali, cuéntame de tu familia en India. Familia en India. Familia, mi padre, mi mamá, papá. Okay, sir, I want to say Yeah, please. my what you say, hermano, vivo en Spain, Barcelona. Vive en España. Yeah, España, Barcelona. Okay, and mi papa, mi madre, soy India.
está en India, वो चलिए ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। está en India, muy bien। ओके, सो यहाँ पे स्पेन को स्पानिया बोलिए, बिकॉज हम स्पेनिश सीख रहे हैं। अगर हमको स्पेनिश को स्पेनिश में ना बोलना है और स्पेन को स्पेनिश में ना बोलना है तो बेकार हो जाएगा। तो स्पेनिश हो गया स्पानियोल और स्पेन हो गया स्पानिया। Dulce, ¿qué más? Por favor, pregúntale। Platícame de ti. अपने ¿Te gusta hacer la cocina? ¿Qué te gusta cocinar? ¿Qué te gusta cocinar? Me gusta cocinar, ah, me gusta música, también me encanta escuchar música. सुनिए, उन्होंने बोला के ते गुस्ता कोसिनार। के का मतलब हो गया व्हाट ते गुस्ता कोसिनार, व्हाट डू यू लाइक टू कुक। तो आपको क्या खाने में क्या बनाना पसंद है वो पूछ रही हूँ। सर ऐसे कैसे सर, सब कुछ। सब कुछ को स्पेनिश बोलते हैं todo। todo todo me gusta, all, everything I like। ya todo तो todo आप ऐसे बोल सकते हैं todo me gusta cocinar todo, ऐसे। ओके, Ok, me entonces, gusta cocinar todo. muy bien। Pregunta sobre su pasatiempo। ¿cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Y por qué? pasatiempo का मतलब होता है हॉबी। pasatiempo का मतलब होता है हॉबी। तो आपकी What is फेवरेट your हॉबी hobby क्या? favorite and for why is your favorite यस, hobby? Mi hobby, me gusta ver las películas, fin de semana, porque me libre. porque yo estoy libre। bueno, está bien, bueno, muy bien। आपके जो आंसर थे मुझे खुद जैसे me gusta ver la película, अरे बाप रे, कहाँ से आपने ver सीखा, कहाँ से la सीखा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। muy bien, felicidades रोशाली जी, बहुत अच्छा था। bueno, now you can finally आप अपना माइक ऑफ कर सकती हैं क्योंकि आप बहुत इको कर रहा है। खैर, sí, Dulce, siguiente, ¿quién más? Vishal, si es que lo estoy diciendo bien. Vishal. Sí, Vishal, sí। लो, आपका भी ऑन नहीं हो रहा। Sí, Vishal está aquí। Hola, Vishal. अच्छा, मैं ऑफ कर देता हूँ। हाँ, मैं ऑफ कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। bueno, sí, Vishal, por favor। Hola Dulce and namaste from India. Namaste. Vishal, cuéntame de ti, de tu familia. Hay 5 miembros en la familia. Mis padres, mi madre, mi hermano menor, mi prima menor. Yo soy el más. Mi padre, sus nombres son mi padre Yogendra Dubey, mi madre Bindu Dubey, mi hermano menor Vinit Dubey, mi prima menor es Shreya Pandey. bueno, ahora विशाल आप शुरू से पूरा अपना पहले प्रेजेंटेशन दिए, फिर हम लोग पूछते हैं आपसे सवाल। Hola, buenos días, Dulce, buenas noches, mis amigos. Sobre mí, mi nombre es Vishal Dubey, yo soy de India, yo vivo en Prayagraj, Uttar Pradesh. Mi compañero es en 28 años, 1987. Y tengo 34 años.
Mi deporte favorito es cricket y lucha. Mi comida favorita es pav bhaji. Mi bebida favorita es zumo de fruta. Sí, zumo de fruta. Mi hobby es escuchar música. Mi cantante favorita es Lata Mangeshkar ji. Sí. Mi día favorita de la semana es domingo. O el domingo, porque domingo soy libre. Y mi más favorita es enero. ¿Por qué? Este mi tango, mi cumpleaños, la gente me saluda y me encanta el invierno también. Sobre mi familia, hay 5 miembros de mi familia: mi padre, mi madre, mi hermano menor, mi prima menor, yo soy el más. Mi padre, Yogi Dubey, mi madre Din Dubey, mi hermano menor es Vinit Dubey, y mi prima menor es Shreya Pandey. Mi padre es oficial de ferrocarril. Mi madre es ama de casa. Especialmente mi padre es muy estricto. Mi madre es muy genial. Sobre mi cualificación educativa es yo soy gerente de recursos humanos. Yo tengo 9 años de experiencia en gerente de recursos humanos. Yo soy postgraduado. Lo que me gusta trans música, me gusta negro color, me gusta carros en motocicleta, me gusta vestir bien, especialmente. Lo que no me gusta gente egoísta y sentarse inactivo. Temporada de verano. Finalmente, sobre mí soy amable, ayudando a las personas y aprendiendo cosas nuevas todos los días, especialmente en español. Es un idioma excelente y hermoso, especialmente cuando tienes un maestro como el señor Rizwan. ¿Y Dulce? Gracias, muchas gracias por todo. ¿Y Dulce? ¿Dulce no es profesora? Gracias, a mí también agradezco mucho, pero Dulce también. Ok, muy bien. Recuerda que tú eres el teacher mayor. Sí. Pero sí, eres también especial para nosotros. pero muy bien, प्लीज एवरीवन, सभी लोग बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था. आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज एवरीथिंग वाज परफेक्ट, नॉट ओनली परफेक्ट बट ऑल्सो इतना लंबा बोलना का हिम्मत करना और साहस करना, वो भी इतने कम समय में. हम सभी सेम बोर्ड पर हैं, है ना. हम सभी के लिए 24 घंटे हैं, हम सभी बिजी हैं, बट हम सभी कैसे अपने लिए समय निकाल के, क्योंकि हमारे सपनों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है. बिकॉज आवर सन आर आवर इक्वल्स, ठीक है. हमारे सपने हमारे बच्चे हैं, और हम चाहे जितना भी बिजी हों, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए समय निकाल ही लेते हैं.
ठीक है। सो आप अपने ड्रीम के लिए अपना समय निकाल रहे हैं और अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सो muy bien, felicidades. Ok, ahora Dulce, por favor. Pues es que ya supe todo de él, pero bueno. Vishal, ¿me darías trabajo en tu empresa? वो बोल रही कि मुझे अपनी कंपनी में जॉब दोगे? Bueno, sí, pregunta algunas que ellos entienden, porque solo entiendes Vishal, frases. ¿cuál es tu pasatiempo para distraerte, tu pasatiempo favorito? Escuchar música, especialmente trance música, muy favorito, muy. Ujú. Ok, su color ya sé que es el negro. ¿Qué es lo que más te gusta de donde tú vives? आपको वो क्या चीज पसंद है जो जहां आप रहते हैं, वहां की क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? Todos. Algunos especial, como en mi ciudad, चिकन पहना भी जाता है और चिकन खाया भी जाता है। Especialmente templos. Ajá. Y Río, los tres ríos, qué especial. Prayagraj es muy especial. Sí, especial por Ganga River, Ganga Rio. ये लोग बोलते हैं रियो, वो तो रचना जी बहुत अच्छे लगते हैं, गैंगेस। गैंजेस। बोलिए, काम शुरू होने वाला है, बहुत टेंशन है। हाँ, वो जो फॉरनर आते हैं ना, गेंजेस गेंजेस बोलते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि इतना पवित्र नाम है, उसके लोग गंजा टकला पता नहीं क्या क्या बुलवाते हैं, गेंजेस गेंजेस। वाटर, चाहे अमेरिका से आ जाए चाहे यूके से आ जाए, मैं कभी गैंजेस नहीं बोलती। गंगा मतलब गंगा। सेम। बिल्कुल, योगा नहीं है मेरे लिए, योग है। तो हाँ, So, हाँ। I'm quite different tour leader actually, so that's why hard. बिल्कुल, क्योंकि हम लोग गेंजेस बोलते हैं। अब मुझे स्क्रिप्ट ना ऐसी बना दो, रट मैं लूंगी। स्क्रिप्ट आपके एप्लीकेशन में आपने टाइम नहीं निकाला होगा, लेसन नंबर 4 देखा नहीं होगा। पूरा उसमें। सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने वाकई नहीं देखा है। हाँ, और वो मुझे मालूम है। मुझे कर, बट मैं अनफॉर्चुनेट नहीं, ये आपको रचना जी बताऊं, ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ये किसी ने भी मतलब ऐसा नहीं कि इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, 1 महीने में पूरी स्पेनिश सीख लिए, ये सभी लोग रट के ही आए हैं। ओके। मैं के चक्कर लगा रही थी ना अभी तक, कि अभी 2 दिन पहले फ्री हुई हूँ मैं। कुछ अच्छी खबरों के साथ लगा रही थी, कुछ बुरी खबरों के साथ लगा रही थी पिछले 1-1.5 महीने से। जी। तो लेकिन आज मेरे को आना था इस क्लास में, दैट्स व्हाई आई जॉइन, कि सबकी शक्ल देख लो, हाय कर लो सबसे, और हम क्या है वो तो हमें ही पता है ना फिर। नहीं, बिल्कुल, हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल सीखे और एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिले थे, तो बहुत अच्छी बात होगी। एंड कुछ बूझते पड़ रहा है मेरे को, कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि बीच में एक आध वीडियो देखी है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। बिल्कुल, felicidades, muy bien। ओके, सो विशाल, मेरी तरफ से कुछ consejos मतलब ये होता है कुछ राय, एडवाइस, कि सबसे पहले कुछ 2-4 वो मैं अभी इसको काउंट नहीं करता हूँ, खासकर जो आपका ग्रामर पार्ट है उस पर मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। लेकिन जैसे आपने क्वालिफिकेशन को कैसे बोला स्पेनिश में? क्वालिफिकेशन। अभी सही बोल रहे हैं, उसमें शायद क्वालिफिका ऐसा कुछ, थोड़ा मुझे याद आता है, थोड़ा सा अलग था, लेकिन अभी सही नर्वसनेस आ जाती है। नहीं, कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन वाला है, अभी ये चीज सभी के लिए, बीच में कहीं ना कहीं हम लोग इंग्लिश की तरफ आ जाते हैं, है ना, वो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन ये कैसे सुधरेगा? ये धीरे धीरे ही सुधरेगा, जब हम लोग स्पेनिश को जितना ज्यादा सुनेंगे और पढ़ेंगे, दोनों चीजें, जितना ज्यादा हम सुनेंगे, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, उसके लिए यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, मैं खुद भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अभी मैं एक जो स्नैपी स्पेनिश वाला पेज है वो भी मैं फिर से शेयर करूंगा, आप लोग उसमें भी, उस पेज में भी ऑडियोज हैं, मेरे पास भी ऑडियोज हैं, और ये दोनों करके आप आराम से आगे कर सकते हैं। ओके, bueno, al final
प्रेम जी आइए प्लीज, बिenvenido. Hola, Prem. Hola. De nombre Prem. प्रेम, sí. Prem significa amor en español. Amor. Oh, wow. Sí. Prem Amor. Ok, lo voy a apuntar. Sí. Ok, Prem जी Prem, प्लीज. platícame de tu familia. अपनी फैमिली के बारे में बताइए. Familia, siete members, mi padre, mi madre, and hermana and hermano. Muy bien. आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू से प्रेजेंट करिए पूरा, जहाँ से आपको मालूम. Hola, señor y señorita. Mi nombre es Prem Sharma. Yo soy de India. Yo soy indio. Yo vivo en Morena. Yo tengo 35 años. Mi cumpleaños es en 25 noviembre. Mi estudiante, soy estudiante en our language school. Yo estoy estudiante en español. Yo soy graduado y he pasado MP board. Mi materia favorito es 5 ciencia. And he insisted me Ambrose as mi familia, mi padre, mi madre, and hermana menor y hermano menor. Mi padre es agricultor and mi madre es ama de casa. Yo soy el más. बस सर इतना ही हुआ है सर. तो आप इसको स्पेनिश में खत्म करिए. Eso es todo sobre mí. इसको ऐसे बोलिए. Eso es, मेरे साथ बोलिए. Eso es todo sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. sobre mí. या muy bien, felicidades. आपने बहुत अच्छा बोला. मतलब मुझे लगा नर्वस होंगे, बट आप स्पेनिश को इतना बड़ा बोलना ही अपने आप में बड़ी बात है कि अगर आप 1 मिनट से ज्यादा खड़े हो जाते हैं, है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है. अभी मुझे मालूम है कि इतनी चीजें एकदम से 5-10 मिनट का विशाल ने पता नहीं कैसे कर लिया कि वो 4 मिनट तक बोल रहे थे, लेकिन 1 मिनट भी बोलना, अगर हो सकता है कि मैं तो सबसे खराब स्टूडेंट होता, अगर मैं इस क्लास में नया होता, मैं तो बिल्कुल बोल ही ना पाता, इतनी देर तो मेरे से होता ही नहीं. लेकिन अगर आप सबने 1 मिनट को भी क्रॉस किया स्पेनिश को, और जब आप एक स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो स्क्रिप्ट में आप तभी बोल सकते हैं जब आपके जहन में आपने पहले वो शब्द कहीं सुना हो या पढ़ा हो. तो उस लाइन को ही पूरा, एक लाइन को सिर्फ चाहे आप पढ़ के बोल दें, चाहे आप बिना देख के बोल दें, आप उसको तभी पूरा सही बोल पाएंगे जब आपने वो चीज पहले से उसको प्रैक्टिस कर रखी है, वो शब्द आपके नॉलेज में होंगे, तभी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. सो ahora Dulce, por favor. Prem, ¿cuál es tu deporte favorito? Deporte sport होता है. Mi favorito sport es cricket. Deporte es el cricket. Deporte cricket. Sí. Puede preguntar, Dulce puede preguntar nombre de sus familiares. Prem, dime el nombre de cada uno de tus familiares. No, así tienen que preguntar cada persona. Tú tienes que preguntar porque él puede contar sobre nombre de sus familiares.
Cada, por ejemplo, que tío, tía, él sabe esa palabra o no, podemos ver. Ok, o sea, ¿quieres que le pregunte nada más que cuáles son sus familiares? Puede preguntar así, ¿cuál El es el nombre nombre. de tu papá? Así, algo, es cada una. Ok, ¿cuál es el nombre de tu mamá? इसको बोलते हैं अमादे कासा No, वो पूछे nombre का मतलब अगर नाम और दे Name. मामा तो नेम ऑफ द मॉम. अच्छा शिव कुमारी आप ऐसे बोलिए, mi mamá se Mi llama mamá. या फिर mi mamá nombre es. mi mamá nombre es शिव कुमारी Sí, otros familiares. Ahora el nombre de tu papá. क्या सर Nombre de tu What is the papá. name of your father? Nombre de tu papá. अच्छा अच्छा सर मी फादर नेम इज एस एल राम अवतार शर्मा Sí, तो आप यहाँ पे nombre बोलिए. Nombre का मतलब होता है नाम. जैसे आप बोलते हैं ना, mi nombre es. Nombre का मतलब हो गया नेम. Okay, Dulce, por favor. ¿Cuál es tu color favorito? color को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? कलर, याद नहीं रंग. Color favorito. color is color. कलर बताइए. mi favorito color is verde rojo blanco and negre नेग्रो. हाँ, इसमें उल्टा हो जाता है. जैसे स्पेनिश में हम लोग जैसे फावरितो कलर नहीं होता, कोलोर फावरितो, उल्टा हो जाता है. जब भी हम स्पेनिश बात करते हैं, हमें बोलना है कि ब्लू कलर, है ना, तो कोलोर आसुल मतलब उल्टा हो जाता है. जब जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद में लग जाता है, पहले नहीं लगता. जैसे अच्छा लड़का हम लोग बोलते हैं स्पेनिश में, तो हम लोग बोलेंगे लड़का अच्छा, यानी chico bueno, ऐसा बोलेंगे, उल्टा, al revés. ¿Ok? Sí, Dulce. Ahora puede preguntar fecha de cumpleaños. Ok. ¿Cuál es tu fecha de cumpleaños? ¿Qué día cumples años? Fecha means किसको मालूम है? Anyone? क्या Fecha means What day is your birthday? yeah, fecha means होता है तारीख. आपके जन्मदिन का तारीख, वो डेट पूछनी है. अच्छा सर मैं FN viento 5 noviembre No, viento क्या होता है? 20 viente sorry हाँ, viente 5 noviembre हाँ, एक चीज मैं बताऊं, आपका प्रॉब्लम, आपकी लड़ाई चल रही एनिये के साथ में, तो आपने कुम्प्ले आनोस बोला था, तो कुम्प्ले आन्योस होगा. दूसरा चीज, जब आप वो बोल रहे थे, अपनी एज बता रहे थे, उसमें भी आप आनो बोल रहे थे, तो वो आनो नहीं होगा, वो आन्यो होगा, है ना, आन्यो. तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है. bueno, muy bien. सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला. प्रेम जी भी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया. सभी लोगों को जो YouTube का वीडियोस है, वो जो मैंने क्वेश्चंस का भेज रखा था, जो मैंने अभी पूछा कि ये वीडियो देखा कि नहीं ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को, भाई देखो, जवाब तो तभी दे पाओगे ना जब सवाल पता हो. जब सवाल ही नहीं पता होगा तो क्या जवाब दोगे? ये तो जब मैं स्पेनिश सीख रहा था और फॉरेनर के साथ घूमना शुरू किया, तो पता चला कि कुछ समझ ही नहीं आता था. क्यों नहीं समझ में आता था? क्योंकि मैंने जवाब तो याद कर लिए थे, सवाल नहीं याद किया था और हमको लगता है कि जवाब याद कर लेने, बचपन से यही सिखाया जाता है ना कि बेटा क्वेश्चंस के आंसर याद कर लो. बचपन से मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी. एग्जाम देने गए, वहां पे एग्जाम सेंटर पे क्वेश्चंस आंसर पता है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा तो वो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है. तो सभी लोग जैसे जो भी अपना प्रेजेंटेशन याद करें, तो उसके सवाल भी देखें, अपने खुद से पूछे कि यार अगर मुझसे ये चीज कोई पूछेगा, जैसे कोलोर है, कोलोर फावरितो, तो कोलोर याद रखना है. प्रेम जी, जैसे आप कोलोर याद रखिए, फामिलिया याद रखिए, नोम्ब्रे. आप सभी लोगों ने, हो सकता है, देखिए, दो तरह के लोग होंगे इस सी क्लास में. एक तो वो लोग होंगे जिन्होंने पूरा एकदम बहुत अच्छे जो लर्नर रहे होंगे, जो पूरा एकदम रट लिया होगा लेकिन मीनिंग नहीं देखा होगा. वो जो नहीं 3 इडियट्स में वो जो स्पीच वाला केस हुआ था, तो वही वो वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे कि कुछ भी पढ़ लो सब स्पेनिश है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है. मुझे दूसरे वाले स्टूडेंट ज्यादा पसंद आए होंगे जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए कम से कम 500 वोकैबुलरी तैयार कर ली होंगी. मतलब उन्होंने हर एक चीज का मीनिंग देखा होगा कि यार ये क्या है. जिनके जहन में ये सवाल होगा कि ये नोम्ब्रे लिखा है, तो नोम्ब्रे का मतलब क्या होगा.
जिन्होंने ये भी देखा होगा कि ये जब हम अपने पासातियम्पोस के बारे में बात करते हैं तो ये पासातियम्पोस का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो हर एक चीज का जब मीनिंग देखा होगा, फावोरितो का मतलब क्या होगा, है ना। तो हर एक चीज का जब आपने मीनिंग देखा होगा तो एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए मिनिमम 100 तो कहीं नहीं गया, 100 तो कहीं नहीं गया, 100 तो वोकैबुलरी सबने याद किया होगा। और मैं अगर आपने थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत किया होगा तो कम से कम 200 वोकैबुलरी तो कहीं नहीं किया, 150 से 200 मेरा अनुमान है, ठीक है। तो अब सोचिए विद इन 1 मंथ, सभी लोग सोचते हैं यार 1 महीने में कैसे इतना वोकैबुलरी याद कर लेंगे। अब मैं आपको काउंट कराता हूँ। सबसे पहला, कम से कम फर्स्ट 2 लेसन में ही हम लोगों ने कम से कम 250 वोकैबुलरी याद करी थी, पहले और दूसरे चैप्टर में। लेसन नंबर 3 जब हुआ था उसमें भी हमारे पास 150 वोकैब थी, है ना। तो लगभग 400 वोकैब तो हम लोगों ने लेसन नंबर 3 तक तैयार कर लिया, ठीक है। लेसन नंबर 4 पे जब आए होंगे तो लेसन नंबर 4 में भी हम लोगों ने कम से कम कुछ नहीं तो 200 वोकैबुलरी वहां भी याद की होंगी, ठीक है। आज इसको तैयार करने के लिए हम सब 200 और कम से कम विद इन 1 मंथ, अभी 1 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और हम सब की मुझे ऐसा अनुमान है कि हम लोगों ने मैक्सिमम 1000 मिनिमम 500 तो याद होनी चाहिए सबको। नहीं याद है तो याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद हम लोग कर सकते हैं। अब हमारा आगे के टास्क जो होंगे वो होंगे ग्रामर, क्योंकि इतना करने के बाद अब हम लोग ग्रामर पे होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों की अब स्ट्रेटजी चेंज होगी। पहली स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि हम वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सके, हमको कुछ शब्द हों ताकि हम स्पेनिश बोल सके। अब हमारी स्ट्रेटजी चेंज होगी, अब हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक से ग्रामर शुरू करेंगे। ये ग्रामर वही कर पाएंगे जिनका थोड़ा सा स्पेनिश का ये जो 400, 500, 1000 वोकैबुलरी का बेस होगा। अब हम लोग आर्टिकल सीखेंगे, आर्टिकल्स में आर्टिकल सीखेंगे, जेंडर सीखेंगे, ये दोनों चीजें हम लोगों को याद हो जाएंगी, रूल्स हम लोग पढ़ लेंगे। और मैं बता दूं, ज्यादा मैंने एक्चुअली क्या है, स्पेनिश जो रियल अकादमिया है वो स्पेनिश के रूल बनाती है, मैंने उसके सारे रूल्स को उन वीडियोस में भर रखा है। तो जो प्रेम जी माइक बंद कर लीजिए, हाँ। तो जो रूल्स जो है वो ना समझ में उनको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रूल्स आगे के चैप्टर्स पे डिपेंड है। हम वर्ब सीखेंगे तो वहां के नियम यहाँ पे काम आएंगे। तो आप आर्टिकल के रूल सारे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद हम अगली क्लास में जब आएंगे तो मैं आपका टेस्ट लूंगा, और साथ ही साथ अब यार अगर टेस्ट ये सब होगा तो हम इस हफ्ते करेंगे क्या, उसके अलावा हम ग्रुप में क्या भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टास्क देता हूँ आपको। यहाँ पे ये टास्क है कि फ्रॉम नाउ आपके पास, आपको ये कंपलसरी है कि आपको वो डेली जो आधे घंटे रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद सभी लोग एटलीस्ट, और यहीं से पता चल जाएगा कौन कितना सीरियस है स्पेनिश सीखने के लिए, एटलीस्ट 5 वोकैब पर डे भेजोगे नए। सभी लोगों को ये कंपलसरी 5 वोकैब भेजोगे। अब 5 वोकैब भेजोगे तो काम क्या होगा, एक दूसरे की वोकैब को याद करना और उसकी ऑडियो भेजना ग्रुप में, ठीक है। एक दूसरे की, जैसे 5 भेजी विशाल ने, 5 भेजी प्रेम ने, 5 भेजी और भी किसी शौर्य ने भेज दी, ठीक है। तो हम सभी लोग एक दूसरे की वोकैब को याद करेंगे, उन 5-5 वोकैब को, और ग्रुप में भेजेंगे ऑडियोज को। ये आपका टास्क होगा, ठीक है। जो अब रीडिंग के लिए पहली रीडिंग कहाँ से करेंगे, पहली रीडिंग आपको कोई किताब उताब नहीं खरीदनी, कुछ भी नहीं खरीदना। मैं आपको जो मेरी वीडियोस है उनकी लिंक दूंगा, उसको आप लोग सुनिएगा। सुनने में जो जो वोकैबुलरीज आप उससे आप फाइंड आउट करोगे वो आप लोगों को ग्रुप में भेजना है। 30 मिनट रीडिंग ये कंपलसरी है सभी लोगों के लिए, हर रोज बोलिए। और ऐसा ना पढ़िए कि जैसे मतलब ये ले लिया और मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बस मन में ही पढ़े जा रहे, तो स्पेनिश मन में ही आएगी और आप खुद ही बोल के खुद ही समझ लोगे तो ठीक है। आपको दुलसे को समझानी स्पेनिश, तो सभी लोग जब वो पढ़ेंगे तो बोल बोल के पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम ये सारी चीजें, और हाँ, जब ग्रुप में ऑडियो भेजेंगे तो हमेशा की तरह बिना देखे ऑडियो भेजेगा ताकि दूसरे उसको समझ सके। सो अभी सबसे पहले हाँ, मैं दुलसे जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सभी लोग माइक ऑन करके दुलसे जी को थैंक यू बोल सकते हैं। मुचस ग्रासियस दुलसे जी para ayudar a mis alumnos. Gracias, profesor, a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, so, Excelente noche. sí, Dulce siempre disponible para nosotros। माइक बंद कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि बहुत रुइदो हो रही है। रुइदो का मतलब होता है आवाज, नॉइस हो रहा है, ठीक है।
So muchas gracias, Dulce Ji, para ayudar a mis alumnos. Mis alumnos están mejorando despacio. En mi opinión, muy rápido, pero sí, no puedo decir a ellos delante de ellos que sí, muy rápido. ओके सो सभी स्टूडेंट लोग, मैं इनको बीच बीच में आप लोगों के अच्छाई बुराई सब उनसे स्पेनिश में बोलता हूँ। यही तो मजा आती है ना। अभी जब स्पेनिश आप सीख जाएंगे ना, बगल में खड़े होने वाला आदमी नहीं जान पाएगा कि आप उसी के बारे में पूरी कहानी बता रहे हो। ठीक है, तो ये लैंग्वेज में बहुत मजा आती है। जब हम लोग, मैं फॉरेनर के साथ घूमता हूँ, कभी किसी शॉप पे पहुंचा, कभी कहीं पहुंचा, तो बढ़िया होता है बोलने के लायक। उनको बोलो समझ नहीं आता। मेरे घर में भी अगर फॉरेनर आते हैं, कभी मुझको कुछ बोलना हो कि मेरी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना, मैं बोलूं मेरी फैमिली ना समझे और मेरी फैमिली बोले तो वो ना समझे तो दोनों खेलने में बहुत मजा आती है कि वो लोग समझते नहीं और मैं बोल रहा हूँ। तो आप भी सब चीजों को इन फ्यूचर बहुत ही जल्द एंजॉय करेंगे। लेकिन अभी अगला टास्क हम लोगों को कंप्लीट करना है, बहुत ही सीरियसली कंप्लीट करना है। अभी तक जिन्होंने वोकैबुलरी नहीं याद करी है, प्लीज याद कर लीजिए। एटलीस्ट 500 वोकैबुलरीज याद कर लीजिए, ताकि हम लोग आगे की जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर सके। क्योंकि अगले हफ्ते जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में देखते हैं किसका कितना स्कोर रहेगा, और वही लोग स्कोर अच्छा कर पाएंगे जिनको ये वोकैब होगी। रूल तो मैं बता ही दूंगा, रूल तो मेरी तरफ से पक्का है। और साथ ही साथ ऐप में फिर से क्विज है, तो क्विज सभी को देना है। वो क्विज आप दोगे, उसमें जो भी आंसर्स आएंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे, ताकि हमको पता चल जाए कि भाई किसने कितने नंबर्स पाए। ठीक है, सो de nuevo muchas gracias a todos. So thank you so much everyone. We will see you next week. अगले हफ्ते मिलते हैं नई वोकैब